and I was driving my car, a Toyota Corolla, with my wife. We were both sitting in the front seat. They were repeatedly hitting at the window pane of my car, repeatedly. Their attempt was to break the window pane of my car. So then they started taking out bottles, and they were furiously throwing liquids at my car. And they said to me that they were Congress workers, youth Congress workers. So I just want to tell you, Sonia Gandhi, that you're the biggest coward in this country right now. You, Sonia Gandhi, tried to carry out an attack on me when I was driving back from work. You know the questions I've asked you are absolutely appropriate. You have no guts to face me. My questions against you will increase. The questions I'm asking you are legitimate questions. You tried to attack me, you tried to attack my wife, you have tried to attack both of us while we were coming back, and I will hold you personally responsible for any consequences of any attack on me. I want to tell everyone who's watching this tonight that if anything were to ever happen to me, it is Sonia Gandhi who is responsible. Sonia Gandhi and the Vadra family who cannot take my questions right now. I have asked legitimate questions. Every fake news story of yours I have busted. I have busted the story put out by your daughter Priyanka Vadra, which said that in Gujarat, Hindus and Muslims are segregated. It was fake news which was put out by your daughter Priyanka Vadra. Now go ahead, use your machinery, use your goons, use your might, use anyone you can. Use anyone you can, but I'm telling you, Sonia Gandhi, we have the support of the people of India. And I want to see what you can do. So Sonia Gandhi, bring it on. For everyone who's watching this today, I'm going to be filing a complaint. I'm going to be going personally to the NM Joshi police station. Get as many goons out. Attack me. Stop my car. Do what the hell you can. But we are not going to be scared of you and your monstrous measures anymore. I thank everyone for their support. I've got a lot of support. Many of people are calling me from all across India. I thank you for your support. दोस्तों, सबसे पहले अर्नब गोस्वामी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। पालघर में जो दो हमारे दो संतों की निर्मम हत्या हुई, उनके लिए इतनी प्रखरता से वे आज जो न्याय की मांग कर रहे हैं, इसलिए सच में उनको दिल से धन्यवाद है। दोस्तों, पर देखिए आज रियल फासिज्म क्या है वो आप देखिए। ये लोग पूरा ये जो जितनी भी सेक्युलर पार्टीज है, तथाकथित लिबरल्स है, ये जो वामपंथी है, ये सब मिलकर हमेशा से मोदी जी को फासिस्ट कहते हैं, हिटलर कहते हैं, नाजी कहते हैं कि भाई बोलने नहीं दिया जा रहा, हमको क्रिटिसाइज करने नहीं दिया जा रहा। विडंबना देखिए, ये लोग बोलते हैं क्रिटिसाइज नहीं करने दिया जा रहा, और ये कहकर ही वो क्रिटिसाइज ही तो कर रहे हैं। आए दिन मोदी जी को गालियां देते हैं। पिछले साल, चलो एक एक करके हम उदाहरण देते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी को नीच कहा। राज बब्बर ने पिछले ही साल मोदी जी की माताजी की आयु उसकी तुलना रुपए की गिरती कीमत से की। बहुत ही भद्दे तरीके से मोदी जी की माताजी का अपमान किया राज बब्बर ने। इसके अलावा राज बब्बर का तो कहना ही क्या, मतलब वो नक्सलियों को क्रांतिकारी वगैरह भी पिछले साल कहा था राज बब्बर ने। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। इसके अलावा इमरान मसूद क्या कहा था अभी पिछले इलेक्शन के पहले कि मैं बोटी बोटी कर दूंगा मोदी जी की, बोटी बोटी। आज वो उत्तर प्रदेश के जो एडवाइजरी कमेटी वगैरह होती है ना उनकी, उत्तर प्रदेश की, उसका मेंबर है वो एडवाइजरी कमेटी का। अभी भी इतने बड़े पद पर है। कांग्रेस ने उस बयान के बाद भी उसको टिकट दिया था इमरान मसूद को, मोदी जी की बोटी बोटी कर दूंगा। वाह, सोनिया गांधी ने ही खुद मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। ये भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कांग्रेस के अनुसार। इसके अलावा भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज़ादी की जंग चलेगी वगैरह, या जो भी नारे लगे थे जेएनयू में, अफजल गुरु की बरसी मनाई गई थी, वो भी कांग्रेस के अनुसार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उनके साथ में जाकर राहुल गांधी वगैरह खड़े हो गए थे। ये सब कांग्रेस के अनुसार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पर अर्नब गोस्वामी ने केवल सवाल पूछा कि भाई सोनिया गांधी चुप क्यों है, और वो सोनिया गांधी का जो पुराना नाम है, पूर्वाश्रम का जो पहला नाम है एंटोनिया माइनो, वो नाम लेकर अर्नब गोस्वामी ने बस सवाल पूछा, और बस इस वजह से पूरा का पूरा ये जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो अर्नब गोस्वामी के ऊपर टूट पड़ा है कि भाई तुमने सवाल कैसे पूछ लिया सोनिया गांधी से, पुराना नाम कैसे ले लिया। यही कांग्रेस के जितने भी नेता है वो हमारे योगी जी को, उनके एक हिंदू सन्यासी योगी आदित्यनाथ जी, उनको पुराने नाम से पुकारते हैं। कई सारे कांग्रेस नेता आपने देखा होगा लाइव डिबेट में वगैरह अजय बिष्ट कहकर अपमानित करते हैं, एकदम तू तड़ाके की भाषा का उपयोग करते हैं योगी जी के लिए, एक हिंदू सन्यासी के लिए।
जो अनासक्त हो गए हैं, अपना परिवार छोड़ दिया है, घर बार छोड़ दिया है, विदेश और संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास किया है पिछले 3.5-4 सालों में, अपराध से मुक्त किया है। अभी भी कोविड-19 के लड़ाई में सबसे बढ़िया काम अगर कोई कर रहा है तो वो केवल उत्तर प्रदेश कर रहा है, सबसे बढ़िया। मतलब बाकी भी कई राज्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया अभी परफॉर्म कर रहा है। उनको बस एक जो एक होता है ना, अंदर नफरत भरी हुई है इतनी कि उनको अजय बिष्ट कहते हैं, तो वो चलता है उनको। योगी जी को पुराने नाम से पुकारो तो चलता है, पर सोनिया गांधी को अगर सवाल पूछो पुराने नाम से पुकारो तो ये पूरे लोग अर्नब गोस्वामी पर टूट पड़ते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सवाल पूछने की। ये किस प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी, मुझे समझ में नहीं आता कि देश की बर्बादी के नारे लगाना इनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यही कांग्रेस जब पिछले बार जब सत्ता में थे तो भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कोई राम सेतु तोड़ना है, राम सेतु तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस और डीएमके मिलकर, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई अस्तित्व ही नहीं, हलफनामा लिख कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। ये सब इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को पैरों तले रौंदना, इनके हिसाब से ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी थी उनकी, करोड़ों लोगों की भावनाओं को रौंदना। पर नाम नहीं ले सकते आप पुराना, कांग्रेस के नेता का, सोनिया गांधी का पुराना नाम आप नहीं ले सकते, पर करोड़ों लोगों की भावनाओं को पैरों तले रौंद सकते हैं आप। इसलिए दोस्तों आज जो मैंने फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज के सीजन 2 का रिव्यू किया, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सही मायने में देश में 2014 के बाद में आई है। आज सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है, जिसको पॉलिटिक्स का ABCD भी नहीं पता, पॉलिटिक्स का P भी नहीं पता, वो भी आज मोदी जी को अर्थव्यवस्था पर और फॉरेन संबंधों पर, रिलेशंस पर ज्ञान दे रहे हैं। और चलो वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चलो आप किसी भी बात पर सरकार को ज्ञान दे सकते हैं, भले आपको उसके बारे में पता हो या ना हो। लेकिन आज मोदी जी को गालियां दे देकर ही कई लोग अपना करियर बना रहे हैं, पूर्ण रूप से सुबह से शाम तक झूठ, सुबह से शाम तक झूठ, कुछ अता पता होता नहीं है, बस झूठ झूठ झूठ। अभी कोविड-19 इतना भयानक महामारी है देश में, फिर भी कभी वैष्णो देवी में 400 भक्त फंसे होने की झूठी खबर फैलाएंगे, कभी कहीं पर PPE किट्स नहीं होने की झूठी खबर फैलाएंगे, डॉक्टरों के झूठे अकाउंट्स बनाकर झूठे ट्वीट्स करेंगे, एक प्रकार से पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कहीं पर कोई मेंढक खा रहा है तो कहीं पर कोई 5 बच्चों को किसी ने डुबा दिया, मतलब ये सारी जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, सारी फेक न्यूज़ यही लोग आज फैला रहे हैं। इतनी महामारी के समय भी इनको ये सूझ रहा है, सब फेक न्यूज़ फैलाकर देश में एक अराजकता का माहौल, एक भय का माहौल ये बनाना चाह रहे हैं। और फिर यही लोग ऊपर से कहेंगे कि भाई हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, हमें दबाया जा रहा है, मोदी फासिस्ट है। भाई सही मायने में फासिज्म क्या था वो आज देख लीजिए। सोनिया गांधी से बस सवाल पूछा तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम टूट पड़ा है, सवाल तक नहीं पूछने दे रहे ये लोग। तो सोचिए आज सत्ता में कांग्रेस नहीं है फिर भी ये हालत है, तो 2014 के पहले जब सत्ता में थी कांग्रेस तो उस समय क्या हालत होंगे। इसलिए मैंने वो RVS मनी जी का उदाहरण दिया। देखिए कांग्रेस के ही समय के गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, उनके ही सरकार के इतने बड़े पद पर के अधिकारी, उनको सिगरेट से दागा जाता था। क्यों? क्योंकि उनको कहा गया था कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं है ऐसा साइन कर दो, लिख दो ऐसा, पर उन्होंने नहीं माना, वे देश के साथ में खड़े हुए और इसकी सजा उनको इतनी भयानक मिली कि उनको सिगरेट से दागा गया, टॉर्चर किया गया, बार बार टॉर्चर किया गया। उसकी वजह से उनके माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। वीडियो देखिए RVS मनी जी का, सर्च करिए YouTube पर, इतनी भयानक परिस्थिति थी। आप स्वतंत्रता से लेकर के, इमरजेंसी से लेकर के, या किशोर कुमार जी ने बस एक गाने से एक कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था कांग्रेस के, तो उनका आकाशवाणी से उनके गाने ही गायब कर दिए थे। या अभी तक का 2014 तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए किस प्रकार का सच में फासिज्म था देश में। इसलिए 2014 से पहले कई लोग चाहकर भी बोल नहीं पाते थे, खुलकर बोल नहीं पाते थे, क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि आप रिएक्ट करिए, बोलिए, नहीं तो ये लोग जो भी व्यक्ति बोलता है उसको दबा कर उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे खिलाफ बोलने की। बबीता फोगट जी या रंगोली चंदेल जी देख लीजिए, वो डॉक्टर्स के साथ में खड़ी होती है, नर्सेस के साथ में खड़ी होती है, हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ में खड़े होते हैं, वो स्वास्थ्य कर्मियों का साथ देते हैं। तो ये लोग उन पर ही टूट पड़ते हैं कि तुमने कैसे साथ दे दिया उनका, तुमने कैसे जो नर्सेस के सामने नग्न हो रहे थे उनका तुमने विरोध कैसे कर दिया। यानी जो नर्सेस के सामने नग्न हो रहे थे उनकी आलोचना नहीं करेंगे, जो डॉक्टर्स को मार रहे हैं, थूक रहे हैं उन पर, उनकी ये आलोचना नहीं करेंगे, उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। सारे वीडियोस अवेलेबल है, सब न्यूज़ अवेलेबल है, सब कुछ हमारे सामने है। ये सारी बातें कैसे जगह जगह से छुप कर बैठे हुए लोगों को पकड़ा जा रहा है, पर इनको अगर बबीता फोगट और रंगोली चंदेल जी क्रिटिसाइज करती है तो ये उल्टा उन पर ही टूट पड़ते हैं। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आप कहते कि हमें पूछने नहीं दिया जा रहा, सवाल बोलने नहीं दिया जा रहा, फासिस्ट है मोदी। भाई सच में फासिस्ट तो ये लिबरल्स और वामपंथी है।
आज तक का वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का जहाँ जहाँ शासन रहा है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये जब जब शासन में आए हैं दूसरी जितनी भी आइडियोलॉजीज है उनको ये खत्म कर देते हैं। आज केरला में देख लीजिए, सीए का विरोध करने के कारण कितने कैसे कैसे विद्यार्थियों को मारा गया, सारे वीडियोज अवेलेबल है। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जहाँ जहाँ कम्युनिस्टों का, अभी जो पालघर में संतों की हत्या हुई वहाँ पर भी एक कम्युनिस्ट पार्टी का ही एमएलए विधायक है और पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। साथ में ही जो फॉरेन फंडिंग से जो धर्मांतरण वगैरह करते हैं उनका वहाँ पर प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। तो इनका ये जो पूरा मेल जोल है हमेशा से ही रहा है। तो देखिए किस प्रकार से अभी वो सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बंगाल में देखिए बिजॉन सेतु नरसंहार, आप सर्च करिए गूगल पर, 16 साधुओं की जिसमें एक महिला भी थी, उनको मारकर जिंदा जला दिया गया था, मारकर जला दिया गया था। उनको ऐसे टैक्सी से बाहर निकाला, एक जगह जा रहे थे वे 16 साधु, उनको निकाल कर ऐसे जला दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था उस समय। कहीं पर कोई न्यूज़ नहीं, किसी न्यूज़ पत्र, वर्तमान पत्र ने या किसी ने कोई लिखा नहीं था उस समय। कुछ 8-10 दिन के बाद में किसी एक न्यूज़पेपर ने, किसी ने थोड़ा सा एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया था। वो उस आर्टिकल में भी उन साधुओं को क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई वो बच्चा चोरी करके जा रहे थे, बच्चा चोरी करने की अफवाह की वजह से उनको जला दिया गया। ये उस समय भी बच्चा चोरी की थियरी उन्होंने लाई थी। आज भी वही झूठी थियरी ये ला रहे हैं, हमारे संतों को बच्चा चोरी करने वाला बता रहे हैं। तब भी कम्युनिस्ट वैसे ही थे, आज से 30 साल पहले, और आज भी वैसे ही है। ये है कम्युनिस्टों का असली रंग। और कम्युनिस्टों को सपोर्ट करने वाले जो सेक्युलर्स है, लिबरल्स है, इनका पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम है। कई मित्र कहते हैं कि यार ये लेफ्ट वगैरह क्या कहाँ है लेफ्ट, केवल एक केरला में तो है कम्युनिस्ट, कहाँ है कम्युनिस्ट। भाई कम्युनिस्ट भले ही एक राज्य में उनकी सरकार हो, लेकिन इनका जो इकोसिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। पूरा एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया झूठा तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अब एजुकेशन सिस्टम ही तो किसी भी देश का बेस होता है ना यार, उसी को पढ़कर एक अगली पीढ़ी देश की बनती है। आज भी वही पाठ्यपुस्तक पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत एक लाइन भी चेंज कर दो तो ये तुरंत भगवाकरण शिक्षा का कहकर चिल्लाने लगते हैं। ये हालत है आज। एजुकेशन सिस्टम को लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री लीजिए, या फिर मीडिया को ले लीजिए, सब जगह पर इनका वर्चस्व है। तो ये कोई छोटी बात आप मत समझिए। और मैं अर्नब गोस्वामी जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे संतों के न्याय के लिए इतनी प्रखरता से वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों आप भी अर्नब गोस्वामी जी का धन्यवाद करिए, और आप खुद भी आप सवाल पूछिए, हमें कोई एकदम सभ्य भाषा में सवाल पूछिए। सबको अपना आवाज़, अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। सभ्य भाषा में सवाल पूछिए, न्याय की मांग करिए हमारे संतों के लिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।